Hello class 10th, this is Seema ma'am and we are continuing the lesson The Rise of Nationalism in Europe. See children, this lesson you have to study the videos very carefully because this lesson is a bit difficult one and you need to follow it very nicely. Here comes a very important question, a long question of this lesson. We are continuing from the previous video. From the very beginning, French revolutionaries introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity among the French people. So the question is, what measures did the French revolutionaries introduce to create what measures and practices did the French revolutionaries introduce to create a sense of collective identity amongst the French people? See, the question is like that. So the first point, idea of la patrie, la fatherland or les citoyens, the citizen, emphasize the notion of united community enjoying equal rights under the constitution. ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट में कि ये हमारे पूर्वजों का लैंड है ना, एंड आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. नंबर 2 पॉइंट, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. Number 3, Estates General were elected by body of active citizens and renamed National Assembly. Number 4th point, new hymns were composed and oaths were taken and martyrs commemorated. मतलब कि नए नए सॉन्ग्स और ओथ्स, मतलब शपथ ली गई, जो मर गए थे, शहीद हो गए थे, मार्टर्स, दे वर कमोमरेटेड, है ना, याद किए गए in the name of nation. The next point, 5th, centralized administrative system was put in place of and it formulated uniform laws for all citizens within the territory. And then next point, internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Next 7 point, regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. So here till here there is a long question. Next, the revolutionaries were, so here till here, from here till here is a long question. The revolutionaries further declared that it was the mission of the destiny of the French nation to liberate. कि फ्रेंच ने revolutionaries declare किया कि ये फ्रेंच नेशन का भाग्य है, मतलब फ्रेंच पीपल का भाग्य है कि उनके सभी यूरोप के नेशंस को अत्याचारी राजाओं से, डेस्पोटिज्म से मुक्त किया जाए, है ना. व्हेन द न्यूज़ ऑन द इवेंट्स, है ना, जब फ्रांस में ये इवेंट्स चल रहे थे, इसकी खबर, इन इवेंट्स की खबर दूसरी सिटीज़ ऑफ यूरोप में पहुंची, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, दे बिगैन सेटिंग जैकोबिन क्लब्स. अब ये जैकोबिन क्लब्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th. देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज़, है ना. तो इससे उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेन से फ्रेंच आर्मीज़ को रास्ता मिल गया. दे मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, French armies began to carry, है ना, और इन revolutionary wars के साथ साथ फ्रेंच आर्मीज़ किस चीज़ का मैसेज ले जा रही थी? नेशनलिज्म का मैसेज ले जा रही थी. सो अब देखो, नेपोलियन का राज्य आ गया. Within the swath of the territory came under, within the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set, है ना. अब नेपोलियन का राज आ गया है. नेपोलियन जो है उसने अपने राज्य में क्या करना शुरू कर दिया? मेनी रिफॉर्म्स. ठीक है, तो ये द रिफॉर्म सेट बाय नेपोलियन. हियर इज अनदर क्वेश्चन कमिंग अप कि व्हाट वर द रिफॉर्म्स दैट नेपोलियन हैड सेट. ठीक है, तो इसमें क्या था?
द सिविल कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, सिविल कोड ऑफ 1804 नोन एज usually known as Napoleonic Code did away with the privileges based on birth, established equality before the law and secured right to property. Number 2, this code was exported to the regions under the French control in Dutch Republic, Switzerland, and Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed the peasants from serfdom and manorial rules. In towns too, the guild restrictions were removed. Number 4, transport and communication systems were improved. Number 5, peasants and artisans, workers and new businessmen enjoyed newfound freedom. उनको लगा कि उनको नई freedom मिल गई. Number 5, businessman. Number 6, बल्कि है ना, small scale producer of goods began to realize that uniform laws and standardization measures and a common national currency would facilitate movement and exchange of goods and capital from one region to another. ठीक है. So till here Napoleon के reforms or the civil code of 1804. ठीक. Then the areas conquered. अब वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है. In the areas conquered, the reactions of local population to the French rule were mixed initially in many places such as Holland and Switzerland as well as in, है ना. तो शुरू में तो लोगों को लगा कि अरे ये नेपोलियन आ गया और इसने इतने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए, पर धीरे धीरे पहले तो फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, पर इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, मतलब एनिमिटी, हेट्रेड, है ना. क्यों? क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ये पॉलिटिकल फ्रीडम और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स दे वर नॉट मैचिंग, वो साथ साथ नहीं जा रहे थे. क्या था? क्यों? क्योंकि देखो इंक्रीज टैक्सेशन, नंबर 1 पॉइंट, इसलिए इंक्रीज टैक्सेशन. नंबर 2 सेंसरशिप, है ना. नंबर 3 है ना, और कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़, मतलब ज़बरदस्ती भर्ती फ्रेंच आर्मीज़ में, है ना. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए. ये वेरी शॉर्ट का भी हो सकता है, शॉर्ट का भी हो सकता है आंसर. देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो अब हम लोगों ने देख लिया कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो शुरुआत में यूरोप में कहीं भी नेशन स्टेट्स नहीं थे. नेशन स्टेट्स मतलब कि ये मेरा नेशन है एंड दिस होल टेरिटरी, एक सर्टेन बाउंड्री कि ये मेरा है और इसमें एक पर्टिकुलर लोग रहते हैं, है ना. तो जो आज जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स, और इनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ थी. मतलब जो रूलर्स थे वो अपनी अपनी टेरिटरीज़ को राज्य करते थे, और उसमें जो थे ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थी. मतलब क्या हुआ कि वो किसी की नहीं सुनते थे विद इन द टेरिटरी, और इसमें डाइवर्स पीपल रहते थे, मतलब तरह तरह के लोग रहते थे इसमें, और वो तरह तरह के लैंग्वेजेस भी बोलते थे. दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, है ना. ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था. इट वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी रीजन्स एंड पीपल. इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, Austria, Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included Italian speaking provinces. इसमें Italian speaking provinces भी थे, लोमार्डी और वेनेशिया के. ठीक है. और हंगरी में हाफ पीपल स्पोक मगियार, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब और तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे. इन गलीशिया, है ना. अब गलीशिया में देखो क्या था, गलीशिया वॉज ऑल्सो अ स्मॉल कंट्री. तो उसमें क्या था, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश. एरिस्टोक्रेसी मतलब जो बड़े रिच क्लास था. बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेटिंग ग्रुप्स, देयर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पेजेंट्स, peasant people, Bohemians and Slovaks in the north, Slovenes in the Carniola, and Croats in the south, Romans in the east of Transylvania. Such differences did not promote sense of political unity. तो ये जो थे, ये political unity को प्रमोट नहीं करते थे. इतने डाइवर्स ग्रुप्स, द ओनली
Binding these diverse groups together was a common allegiance. बस एक टाई था कि ये हमारा राजा और हमको इनके प्रति वफादार रहना है, ठीक है। तो एक नया सिस्टम उभर के आया उस समय, क्या था? न्यू मिडिल क्लास आया, ठीक है। Socially and politically, landed aristocracy was a dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French. तो ये जो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये एक डोमिनेंट क्लास थी और इनके पास बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे कंट्री साइड में और टाउन हाउसेस भी थे। टाउन में भी अपने हाउसेस थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब अपने मतलब के लिए, अपनी बात बनाने के लिए ये कि फ्रेंच बोलते थे। हाई सोसाइटी में द फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड, उनकी फैमिलीज में आपस में शादियाँ होती थी। ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो थी वो एक स्मॉल ग्रुप था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी they were made up of peasantry. To the west the bulk of the land was farmed by tenants, मतलब ज़्यादा करके लैंड जो है टेनेंट्स थे और स्मॉल ओनर्स थे। while in the eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. serfs क्या थे? serfs भी ये जो थे ये क्या कहते हैं, एक तरह के स्लेव्स होते थे या ऐसा ग्रुप होता था जिनको बहुत कम पैसे मिलते थे काम करने के लिए। इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वो तो ईस्टर्न पार्ट की बात हो गई थी यूरोप के, अब ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की क्या बात थी? वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ रहा था, जिससे टाउन्स भी बढ़ रहे थे और कॉमर्शियल क्लास मतलब ट्रेडिंग क्लास भी बढ़ रहा था। हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट, जो कि प्रोड्यूस किसके लिए करते थे? मार्केट के लिए करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century, but in France, तो इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी में इट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th century। तो जब नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे, है ना, कौन कौन से? अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास था ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप बना उस समय ऑफ बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till the late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity, है ना, emerged. तो ये बड़ा important line है. It was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. So children, we are ending the video here only and we'll study the next video